गल करन जा रहे एक अजिही जगह की जो कि एक टिल्ले ते मौजूद है। मानता है कि कोई रात के समय उस जगह उत्ते नहीं रुकता, जेकर कोई गलत नीयत नाल आउंदा है तां सप जां बिच्छू उस नूं कट लैंदा है। शराब पी के कोई भी व्यक्ति उस स्थान उत्ते नहीं पहुंच सकता। धार्मिक स्थान मौजूद है पिंड बनगढ़ दे विच ते नंगल ते उन्हां वासियां नूं इह टिल्ला विखाई दिंदा है। नमस्कार, तुसीं देख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम ते मैं हरकेश सिंह राणा। अज असीं तुहानूं एक अजिही जगह दिखाउण जा रहे हैं जो कि नंगल अते उन्हां दे लोकां नूं नहीं पता। जी हाँ, असीं गल करन जा रहे एक अजिही जगह की जो कि एक टिल्ले ते मौजूद है। उस जगह की मानता है कि कोई रात के समय उस जगह उत्ते नहीं रुकदा ते जेकर कोई गलत नीयत नाल आउंदा है तां सप जां बिच्छू उस नूं कट लैंदा है ते शराब पी के कोई भी व्यक्ति उस स्थान उत्ते नहीं पहुंच सकता। ते जगह की गल कर लैंदे हैं। धार्मिक स्थान मौजूद है पिंड बनगढ़ दे विच ते नंगल ते उन्हां वासियां नूं इह टिल्ला विखाई दिंदा है। इस धार्मिक स्थान ते पहुंचण दे लई जदों तुसीं महतपुर तो बनगढ़ वाल नूं आउंदे हो तां सेंट्रल जेल रोड उत्ते एक जगह पैंदी है जिस जगह उत्ते इह टिल्ला मौजूद है। चलो आओ करदे आ दर्शन ते जो इत्थे संत रहिंदे ने, महापुरुष रहिंदे ने, उन्हां नाल भी गलबात करदे आ ते इहदे इतिहास बारे अपने दर्शकों नूं दसदे आ कि आखिर की इतिहास है। ते आओ चलदे आ करदे आ दर्शन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਟਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਭਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਗੜ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਧੂਣਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਧੂਣੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਬੂਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੂਣੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਰ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੱਤਾ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੰਦਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਿਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। आनंद भगवान की जय। महंत राजेश्वर गिरी, ऊंचा टीला, गांव बनगढ़। यहाँ का इतिहास ये बोलता है कि जिस समय बाबा बालकनाथ बाबा भरथरी जी हुआ करते तो भरथरी जी का ये तप धूना है, इसी करके यहाँ पर सिद्ध धूना बोलता है। यहाँ पर अग्नि धूने में अपने आप ही प्रकट हुई है।
यहाँ अगर किसी प्रकार से कोई आदमी अगर शराबी आ जाता है तो उसको परमात्मा दंड तुरंत देता है। अगर कोई गलत काम करके यहाँ पे रुकता है तो उसको सांप काट लेता है। ये सदियों से अखंड धूना चला हुआ है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा 1 महीने तक सेवा करता है, उस बच्चे को या तो ये बाहर भेज देता है या बड़ी पोस्ट पे कर देता है। इसकी एक कृपा है, आज तक का इतिहास है। इसी करके इसको सिद्ध धूना बोलते, प्राचीन सिद्ध धूना। यहाँ पर सरकार ने भी बहुत पैसा लगाया है, भगत जगत भी यहाँ पर बहुत सेवा भाव करते हैं। आप आओ, अपना दर्शन करो। थोड़ी देर आप रुक के देखो, यहाँ कितनी शांति महसूस होती है। एक साधु जो यहाँ पर आए हुए थे, वो कुंभ नहाने के लिए गए हुए थे, तो दूसरा साधु उसके साथ में आ गया। वो कहने लगे कि मेरा धूना, वो कहने लगे मेरा धूना है। तो उनमें आपस में तकरार हुई। तो कहने लगा जिसकी जो अग्नि निकाल देगा धूने से, धूना उसका है। तो उस बाबा जी ने 12 साल के बाद में आकर के यहाँ पे अपने आप ही अग्नि प्रकट हुई। तो जब से बाबा भर्तृहरि जी का ये धूना बोलता है, तपोथली है, ये मंदिर नहीं है, ये सिर्फ बाबा भर्तृहरि जी का तपोथली है, धूना है। यहाँ पर सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा रात को सो भी जाता है तो यहाँ पर सांप तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। अगर किसी प्रकार से छोटी मोटी अगर गलती हो जाती है तो यहाँ को माफ़ी नहीं है, तुरंत ही उसका दंड उसको मिलता है। फौजी यहाँ के बहुत ज़्यादा बच्चे फौजी हैं, इसी करके है क्योंकि वो सुबह शाम यहाँ सेवा बहुत करते हैं। लेकिन रात्रि के समय यहाँ रुकने की गृहस्थी के लिए इजाज़त नहीं है। अगर रुकना भी है तो बहुत ही पवित्र हो करके आप यहाँ पर रुक सकते हो। रात को सिर्फ हम ही बाबा जी ही रहते हैं यहाँ पर, और कोई नहीं रहता है। लोग यहाँ पर रात्रि के 9 बजे आना बंद हो जाते हैं। सुबह को 4 बजे शुरू हो जाते हैं, रात्रि के 9 बजे तक वो चलते हैं। 9 बजे के बाद मंदिर बढ़ा दिया जाता है। तो वो आप खुद ही आजमाइश करके देख लो। अगर किसी को कोई शक हो तो, अगर कोई गलत काम करके आएगा तो तुरंत यहाँ पर अपना दंड उसने भोगना पड़ता है। शराबी होगा तो उसको अगला दंड नहीं देखने देता ही। हाँ, अगर छोटी मोटी वैसे गलती हो गया तो उस पर सांप हमला करते हैं। हाँ, यहाँ पर आप कसम खा के देख लो। अगर किसी का कोई विवाद है, अगर किसी ने यहाँ पे कोई झूठी कसम खाई है तो उसका भी उसको तुरंत दंड ही मिलता है। अगर आप सच्चे मन से यहाँ सेवा कर रहे हो तो किसी प्रकार का भी कोई भी रोग दोष है तो ये हटता है। यहाँ पर जो है कि जिसको लकवा मार जाता है वो भी बेचारे नीचे से आते हैं, जिनकी मानता है, जो मानते हैं इसको, लेकिन इसने वो भी अपने भाल किए। ये जो है कि पहले आधा पंजाब में था, आधा हिमाचल में था, लेकिन पंजाब वालों का इसमें कोई गाड़ेगा नहीं है, पूरा का पूरा हिमाचल का है। हिमाचल की सरकार ही इसकी देख रेख करती है। में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। एक भागवत होती है अप्रैल के महीने में, यहाँ पर बहुत बड़ी भागवत होती है। एक हनुमान जी का मंदिर है, एक शिव शंकर जी का मंदिर है, ऊपर राम मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ की जो विभूति है वो धोने के अंदर ही रहती है, वो नहीं निकलती है। हाँ, भगत जगत को जैसे प्रसाद के तौर पे देते हैं रहेगी। यहाँ पर महात्मा के अलावा कोई गद्दी पर बैठ नहीं सकता। जो महंत होगा वही गद्दी के ऊपर विराजमान होगा। तो राख इसमें ही समाती रहती है। इसी में ये विभूति इसी के अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकालनी पड़ती हमें। ये जो है ये मूर्ति तो हमने बाद में स्थापना करी है। उससे पहले तो यहाँ छोटी सी छान हुआ करती, तो यहीं पे ही उनकी गुरु लोगों की यही गद्दी है। यहीं पे उन्होंने बैठ के अपनी तपस्या की है। ये तो बाद में बना घूमती गामती, पहले तो वैसे ही छोटी सी छान थी। टीला एक तो ऊंचाई की वजह से ऊंचा टीला हो गया। सबसे ऊंचा इस क्षेत्र में यही है ना। यहाँ से आप नंगल तक का देख लो, ऊना तक का देख लो, इसी ऊंचा तो कोई है नहीं। इसी करके ऊंचाई को हमेशा टीला ही बोलते हैं। ये आप अपनी आंखों से स्वयं देखो यहाँ पे अखंड धूना ये हमेशा के लिए जगता ही रहता है। आप नीचे देखो, नीचे अग्नि मिलेगी आपको। ये देखो, जितने आप नीचे चिमटा लगाते जाओगे उतनी ही आपको नीचे अग्नि मिलती जाएगी। जितना गहरा करेंगे उतनी ही आपको अग्नि यहाँ पे मिलती रहेगी। इसी करके इसको अखंड धूना बोलते हैं कि ये बंद नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। यहाँ गांव में ही सेंट्रल जेल है, जहाँ इसके बिल्कुल सामने ही
लेकिन जेल का ही कैदी हो या कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर माथा टेकने अवश्य ही आएगा। ये यहाँ की परंपरा है, शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही परंपरा है। जब से जेल बनी है तो जेल वाले, हर कर्मचारी भी, कैदी भी जब छूट के जाएगा तो वो यहाँ पे अवश्य ही माथा टेके। वो सूखना सूखते हैं अपनी कि जल्दी से हमारा निपटारा हो जाए, तो उनकी सुनाई भी होती है। ऐसे बहुत हैं, ऐसे भगत बहुत हैं जिन्होंने कोई सूखना सूखी है तो उनकी अपनी पूरी हुई है। तो किसी ने हनुमान जी की टेलर लगवा दी, किसी ने वो नीचे बनवाया है। तो ये काम यहाँ पे 12 मास चलता ही रहता है। वो भगत जगत की वजह से ही तो है जो काम चल रहा है। सरकार ने तो रोड देना है, सरकार ने वो छोटी मोटी और सुविधा दे देती है सरकार, लेकिन ज़्यादातर तो जो खर्चा पानी जो कुछ मंदिर का चल रहा है वो भगत जगत से ही तो चला हुआ है। यहाँ पर पंडित जी हैं मंदिर में, जो सुबह शाम आरती करके जाते हैं, मोहन पंडित जी। वो 6 के 5 के बीच में अपनी आरती पूजा कर जाते हैं, शाम को भी सुबह को भी। वो बेचारे किसी से कुछ नहीं लेते देते हैं, उनकी फ्री सेवा है। वो आते हैं, अपने आरती उरती कर जाते हैं। बाबा जी तो सिर्फ ऊपर धोने पे ही रहता है, नीचे मंदिरों में आरती पूजा जो करनी है वो बेचारा पंडित ही करता है, उसी का ही काम। किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं है यहाँ पे, जो देख रेख है वो बाबा जी की है, गांव का सहयोग है, और कोई कमेटी नहीं है यहाँ पर।